Students, this is class 7 science chapter number 11 that is transportation in animals and plants, and this is our day 3. Okay, first of all, before starting today's topic, we are going to revise the lesson shortly. What we have studied in this chapter is what is the meaning of transportation and how it is done in animals. We have studied that the transportation is done in human body with the help of circulatory system. Circulatory system consists of 3 parts: heart, blood and blood vessels. Okay, this much topic we have covered in the previous videos. Let us move to the next slide. First of all, we have seen the part blood. What is blood? Blood is a red colored fluid which is flowing through our body. Why the color of blood is red? Because it consists of hemoglobin. What are different components of blood? We have studied that there are 3 basic cells of blood. They are RBC, WBC and platelets. These 3 types of cells are embedded in a liquid which is called as plasma. Plasma नाम के liquid में these 3 cells are floating. Okay, that we have seen. RBC, what is the function of RBC? RBC consists of hemoglobin. That is why its function is carry or transportation of oxygen. WBC, they are fighters in our body. They fight with diseases. And platelets, they help in clotting of blood. It means whenever there is injury, it helps to stop the flow of blood through the injury. These are 3 functions of blood, important functions of 3 different parts of blood. Now, what is the function of blood? The function of blood is transportation of what? Number 1 is digested food from digestive system, that is small intestine, to all parts of body, oxygen, carbon dioxide and different nutrients. Okay, this part we have studied in our previous videos. Okay, after that we have studied blood vessels. What are blood vessels? Blood vessels are pipe like structures through which blood can flow. Okay, so these pipes, there are 2 different types of blood vessels present in our body, that are arteries and veins. Arteries carry oxygenated blood, and this blood is red in color. Deoxygenated blood is also red, but when you see it from outside, you can see that when there is less oxygen present in it, the blood vessels appear blue, है ना. आपने अगर आपकी फिस्ट बांधी ऐसे और बैक साइड देखी उसकी, तो आपको जो ब्लू कलर की लाइंस दिखती, these are veins. They carry deoxygenated blood. Okay, we have also studied the difference between arteries and vein. That is, arteries are thick walled, veins are thin walled. Arteries do not have walls in them, and veins have walls. Walls are present to stop the backward flow of blood. Means through veins blood only flows in one direction. So these are differences between arteries and veins. We have also seen third type of blood vessels, that are capillaries. Capillaries are very thin, so that they can transport blood to every cell of our body. Capillaries, they are connected to arteries as well as veins. Means if you are talking about an artery, then artery is further divided into number of branches. These small branches we call as capillaries, and when their working is done, they contain impure bloods, and after that they are again collected in the form of veins. So capillaries are connected to both arteries as well as veins. This we have studied in our previous video. Okay, now we are going to study the important part of our circulatory system, that is heart. Okay, what is heart? सबसे पहले we are going to discuss the definition of heart. What is heart? See, heart is an organ, okay, which beat continuously beat होता है मतलब उसकी जो wall है, outer wall,
जो कार्डियक मसल्स से बनी हुई होती है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहती हैं, जिसे हम बीटिंग ऑफ हार्ट ऐसे बोलते हैं. ओके, एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ओके, एक ऐसा ऑर्गन जो कंटिन्यूसली बीट करता है. क्यों बीट करता है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. ये एक पंप जैसे काम करता है. जैसे पंप कैसे ना, आपके घर में अगर वाटर का सप्लाई करना है आपको, वाटर मतलब नीचे की क्या वेल है या कोई टंकी है, उसमें से ऊपर अगर आपको वाटर को कैरी करना है तो आपको पंप लगाना पड़ता है. मोटर लगाते हो ना आप. विदाउट मोटर द वाटर विल नॉट फ्लो थ्रू द वाटर पाइप्स. In the same manner, there is a pump in our body which help to flow the blood throughout the blood vessels present in our body, and it guarantee that blood will reach to every cell or every part of our body. Okay, तो without heart ये काम नहीं हो सकता है. That is why heart is an important organ in our circulatory system. Okay, so what is heart? Heart is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of blood throughout the body. Okay, where is it located? Heart is located in our chest cavity. हमारी जो chest cavity होती है, दो lungs के बीच में थोड़ा सा left direction में tilted होता है आपका heart. Okay, so where is heart located? Heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. साइज क्या होती है हमारे हार्ट की? The size of our heart is nearly equal to the size of our fist. अगर हमने हाथ की मुट्ठी बांधी, ओके, तो उसकी जितनी साइज होती है ना, उस साइज का हार्ट आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. दिस इज द अप्रोक्सीमेट साइज. ओके, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ योर फिस्ट. ओके, दीज आर बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू हार्ट. ये आपको पता होना चाहिए, अपने नोटबुक में नोट कर लो. ओके, आगे बढ़ते हैं. सी, दिस इज वॉट अवर हार्ट लुक लाइक. ये हार्ट जो है इसको बीच में से काटा है वर्टिकली, तो ये इसका शेप ऐसे दिखता है. ओके, पार्ट्स देखो इसमें से. हार्ट जो है आपके हार्ट के, आप अगर केयरफुली देखो, इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स. 4 इसके रूम लाइक स्ट्रक्चर है, चेम्बर्स प्रेजेंट है इसमें. दिस इज 1, this is 2, this one is 3rd, this one is 4th. 4 चेम्बर से मिलके हार्ट बनता है. इसके जो ऊपर के 2 चेम्बर से, this one and this one, they are called as atrium. These are called as atrium. जो लोअर चेम्बर से, they are called as ventricles. Okay, तो this is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle. जो राइट साइड है हार्ट की जो राइट साइड है, ये वाली साइड जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वी कैन से दैट दे कैरी इम्प्योर ब्लड. इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो. राइट साइड हार्ट की वर्क करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्प्योर ब्लड के लिए, या वी कैन से दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हम इसे बोल सकते हैं. और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वर्क ऑन oxygenated blood. That is why the color is blue and red. Blue indicate deoxygenated blood, red indicate oxygenated blood. ठीक है, इसके बाद में ब्लू और रेड ब्लड मिक्स ना हो, इसके लिए देयर इज ए मस्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बिटवीन देम. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेप्टम. इसे सेप्टम बोला जाता है. ओके, उसके बाद में देयर आर सम वेसल्स कनेक्टेड टू इट. ये वेसल का जो स्ट्रक्चर है इस डायग्राम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है ना. तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ड्रॉ द शेप ऑफ हार्ट, तो ये डायग्राम थोड़ी सी कैसे ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. ओके, सो फॉर दैट पर्पज वी विल कंसीडर बुक में ड्रॉ करने लायक डायग्राम जो है हम वो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. ये डायग्राम सिर्फ आपको देखनी है. यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. नोटबुक में ड्रॉ करने वाली डायग्राम हम आगे देखेंगे. दिस डायग्राम ऑफ हार्ट यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक. ओके, ये डायग्राम कैसी है देखो, शेप कैसे है इसका. अभी आप बोलोगे मैम हार्ट ऐसे थोड़ी दिखता है, लेकिन लेकिन उसके पार्ट समझाने के लिए हमें आसानी इसी डायग्राम के थ्रू जाएगी. इसके वजह से हम ये
डायग्राम कंसिडर करेंगे। सी शेप कैसे ड्रॉ किया है हार्ट का, जो बाहर का शेप है इन दिस वे, ड्रॉ करने में आसानी चाहिए इससे। इसका बीच वाला जो पर्दा है सेप्टम ड्रॉ किया हमने। अभी इसको देखो हाँ केयरफुली, अभी इसके सारे पार्ट्स हम अच्छे से देख सकेंगे, समझ में आएगा। ये जो पार्ट है यहाँ से ये गलती से ड्रॉ किए हैं, हाँ ये दो पाइपलाइंस इसको ड्रॉ नहीं करनी है, दे आर डन बाय मिस्टेक। ओके सी, सो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। चैम्बर 1 is right atrium, chamber 2 left atrium, this is right ventricle, this is left ventricle, और दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखने वाला जो पर्दा है दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम, वी कॉल इट एज सेप्टम। अभी देखो देयर आर 2 पाइपलाइंस कनेक्टेड टू एट्रियम। आपके 2 एट्रियम को 2 पाइपलाइंस कनेक्टेड है, दिख रहे हैं। यहाँ पे एक पाइप है, एक पाइप यहाँ पे है। दे आर कॉल्ड एज, पाइप्स के नाम देखो क्या है। जो लेफ्ट एट्रियम में आता है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में जो आता है वो है पल्मोनरी वेन। राइट एट्रियम में जो आता है पाइप उसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, राइट एट्रियम में जो पाइपलाइन है, पाइप मीन्स वेसल है, ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। एक ब्लड वेसल निकलती है राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली ब्लड वेसल इट इज कॉल्ड एज वेना कावा, वेना कैवा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली ब्लड वेसल है दैट इज कॉल्ड एज एवोर्टा, दैट इज कॉल्ड एज एवोर्टा। एवोर्टा इज द मेन आर्टरी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, दीज आर 4 ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन द डायग्राम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, ये डायग्राम बुक में ड्रॉ कर लो, बाद में हम इसका वर्किंग समझ लेंगे। ठीक है, सारे नाम अच्छे से देने हैं। उसके बाद में एक बात ध्यान में रखो कि राइट साइड है इम्प्योर ब्लड के कैरियर्स के लिए और लेफ्ट साइड है प्योर ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, चलो ये डायग्राम ड्रॉ की, इसके ऊपर से वर्किंग समझना कैसे थोड़ा सा हार्ड जाता है हार्ट का, क्यों मतलब फ्लो कैसे होगा, ब्लड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हार्ट को फिर से ब्लॉक्स के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, जिससे हार्ट की वर्किंग समझना कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ये हार्ट की डायग्राम, इसमें थोड़ा सा दिस साइड कैरी प्योर ब्लड, राइट साइड कैरी इम्प्योर ब्लड एंड लेफ्ट साइड कैरी प्योर ब्लड। ध्यान में रखो 4 चैम्बर में से 2 एट्रियम बोलते हैं उनको, एट्रिया, एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। ओके ओके, सी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर आपको ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट में वो अगर स्टडी करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। इसमें हार्ट जो है आपका, हार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 4 चैम्बर्स। रेक्टेंगुलर नहीं होता है किसी का हार्ट, हाँ ये 4 चैम्बर्स है। ओके, ये चैम्बर्स में से देखो ब्लड जब एंटर होता है हार्ट में, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स होता है हार्ट, सी व्हाट प्रोसेस हैपन एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो वेना कैवा क्या करता है, जैसे हार्ट की वर्किंग देखो कैसी होती है, जो इम्प्योर ब्लड कैरी होता है वो होता है आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड में, और प्योर ब्लड कैरी होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, जब भी हार्ट रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन के मोमेंट पे बॉडी में से आपकी जो बॉडी है, बॉडी मीन्स व्हाट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में से ब्लड क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो एंटर होगा बॉडी में से वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में, बराबर है। एट द सेम टाइम मतलब राइट एट्रियम में ब्लड एंटर होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है तब, फिर यहाँ से हार्ट जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट साइड से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड पास होता है लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास होता है बॉडी के अंदर। ओके, तो हार्ट जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है हर बार इतनी प्रोसेस होती है। हार्ट का ब्लड का पाथ देखो, हाँ
बॉडी में से राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल में से लंग्स। ये होता है राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में प्रोसेस कैसी होती है? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में से एवोर्टा के थ्रू बॉडी की तरफ। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। अभी ये प्रोसेस होती कैसे है देखो। वी ऑल नो दैट deoxygenated blood is sent to our lungs for the purpose of removing oxygen from it and adding carbon dioxide into it। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्किंग समझते तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी ने जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस हुआ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो सारा का सारा ब्लड अलग अलग वेन्स के जरिए कलेक्ट किया जाता है और फाइनली ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है ये वेना कावा नामक ब्लड वेसल के थ्रू राइट एट्रियम में एडअप होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ये प्रेजेंट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वॉल्स होते हैं, जिसके वजह से राइट वेंट्रिकल में से राइट आर्टरी में से वेंट्रिकल में ब्लड हो जाएगा ऐड, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। ओके, सो फॉर दैट पर्पस ये ब्लड कहाँ से कहाँ तक फ्लो हुआ? ये ब्लड फ्लो हुआ बॉडी टू वेना कावा टू राइट एट्रियम में से जाएगा राइट वेंट्रिकल में से ब्लड पास होगा। ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही है। ये ब्लड पास किया जाएगा लंग्स को। लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड को में से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर फेंकेगा और ऑक्सीजन ब्लड में ऐड करके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे सेंड करेगा? लेफ्ट एट्रियम को। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड ऐड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में से एवोर्टा नामक आर्टरी के थ्रू ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी क्या होगा? पूरे बॉडी को ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, एंड इन दिस वे द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू हार्ट के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन जो है इस मेथड से होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स ये अटैच होते हैं लंग्स को और हार्ट्स को। ओके, जिसके थ्रू ब्लड का प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है एंड आफ्टर दैट द प्योर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द होल बॉडी। ओके, ये जो है दैट इज द वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। That will also explain how our respiratory system and circulatory system are related with each other. Okay, I hope आपको इसका जो फंक्शन है ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। Okay, so this is what about circulation and working of heart. ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो पॉज करो, पेन लो और क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हार्ट? वेयर इज इट लोकेटेड? व्हाट इज हार्ट? वेयर इट इज लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए नीट and well labeled diagram of heart. Draw a neat and well labeled diagram of heart. Which diagram you will draw? This or this? जो ड्रॉ करने में आसानी जाती है that means you will draw this diagram. Third question, explain the process of circulation in your own word. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन इन योर ओन वर्ड। ये डायग्राम तो ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके बाद का जो वर्किंग मैंने आपको बोला वो आपको अपनी वर्ड में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लिखना है। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप? स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप अपने वर्ड में ये प्रोसेस आपको क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, बाकी का जो है हम वो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।